السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1998 میں، جس میں ہمیں سب سے پہلے سمیدی نام کے ایک آدمی سے ملوایا جاتا ہے جو کہ اپنی بیٹی رہایو کے ساتھ رہتا ہے۔ صبح فجر کا وقت ہوتا ہے اور سمیدی اپنی بیٹی رہایو کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جب اس کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے کچھ آدمیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب وہ باہر نکل کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ کیسے دو آدمی اس کے باپ کو بڑی ہی بری طرح سے مار رہے ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ ان میں سے ایک آدمی کا کان بھی کاٹ دیتی ہے، وہ بھی اپنے دانتوں سے۔ جب دوسرا آدمی یہ خوفناک منظر دیکھتا ہے تو وہ فوراً رہایو کے باپ کا گلا کاٹ دیتا ہے اور ان کے گھر کے گیٹ پر لٹکا کے چلا جاتا ہے۔ معلوم پڑتا ہے کہ وہ دونوں کسی قسم کے مشن پر تھے اور اس ٹائم پہ انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کا قتل کیا ہوتا ہے جن کے اوپر یہ شک ہوتا ہے کہ وہ کالا جادو کرتے ہیں۔ خیر، اس حادثے کو 2 سال بیت جاتے ہیں اور رہایو اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور وہ لوگ اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ رہایو تھوڑی بہت پاکٹ منی کے لیے ایک دکان پہ کام کرتی ہے اور وہ دکان کپڑے کی دکان ہوتی ہے، اور اس دکان کی اونر یعنی کہ مالکن کو کچھ دنوں کے لیے کسی ضروری کام سے باہر جانا تھا، تو وہ پوری دکان کی ذمہ داری رہایو کے سر پہ ڈال دیتی ہے۔ پھر ہمیں ملوایا جاتا ہے ایک اور لڑکے سے جس کا نام ہوتا ہے رتمان۔ رتمان اس دکان میں جہاں پہ رہایو کام کرتی تھی وہاں پہ ڈلیوری کرنے آتا تھا، اور وہ اکثر رہایو سے ملتا تھا اور وہ رہایو کو پسند بھی کرتا تھا۔ جس دکان میں رہایو کام کرتی تھی سیم اس دکان کے ساتھ ایک اور کپڑے کی دکان تھی جہاں پر ایک اور لڑکی کام کرتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ریری، اور رتمان سے کہتی ہے کہ تم رہایو کو پریشان کرنا بند کرو ورنہ یہ تمہارے اوپر کالا جادو کر دے گی۔ ریری یہ بات طنزیہ انداز میں کہتی ہے لیکن رہایو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور چپ چاپ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر جاتے ہی رہایو اپنی سوتیلی ماں اور سنتوت کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ سنتوت اس کی سوتیلی ماں کا انکل ہوتا ہے اور وہ دونوں اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے جہاں پر پہلے رہایو اور سمیدی رہا کرتے تھے ہمیں اس گھر کو بیچ دینا چاہیے، اور مرنے سے پہلے سمیدی بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم اس گھر کو بیچ دیں۔ اب رہایو کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی، اسی لیے رہایو کی سوتیلی ماں بھی اس گھر کو بیچنے سے منع کر دیتی ہے۔ جس دن رہایو کے پاپا کی موت ہوتی ہے اس دن سے لے کر وہاں کے آس پاس کے علاقے کے لوگ اور اس کے محلے کے لوگ رہایو اور اس کے گھر والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ رہایو کے پاپا شمن ہوتے ہیں۔ ویسے تو اس لفظ شمن کے کافی سارے مطلب ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں تویز کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا یعنی کوئی بابا وغیرہ، اس کو شمن کہا جاتا ہے۔ رہایو کے بغل والے گھر میں ایک بزرگ رہتا تھا جس کا نام تھا سرو۔ ایک دن رہایو اس کے گھر میں پھل دینے جاتی ہے تو وہ نوٹ کرتی ہے کہ کیسے اس کے گھر میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سانپ والی چھڑی رکھی ہوتی ہے۔ سرو اسے بتاتا ہے کہ کیسے یہ چھڑی مجھے تمہارے والد سمیدی نے دی تھی اور یہ کوئی معمولی چھڑی نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی چھڑی ہے۔ بتاتا چلوں کہ رہایو اپنے سوتیلے دادا سنتوت کو اس لیے نہیں پسند کرتی کیونکہ وہ انہیں یہ والا گھر بیچ کر پرانے گھر میں رہنے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ رہایو کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اگلے ہی سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ رہایو کا پرانے والا گھر چھوٹا سا پریئر روم یعنی چھوٹی سی مسجد بن چکا ہے اور وہاں پر ایک آدمی نماز پڑھنے آیا ہوا ہے۔ جب وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کیسے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ دراصل وہ ہاتھ جن کا ہوتا ہے۔ وہ آدمی اس ہاتھ کو اگنور کرتا ہے اور اپنی نماز کو کنٹینیو رکھتا ہے، لیکن پھر بہت ہی کچھ خوفناک سا ہوتا ہے۔ گھر کی لائٹ آف ہو جاتی ہے یعنی لائٹ چلی جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ رہایو بھی وہیں پہ موجود ہوتی ہے۔ وہ آدمی نوٹ کرتا ہے کہ کیسے نماز پڑھتے وقت اس کے پیچھے بہت سارے جنات نماز ادا کر رہے ہیں، اور ڈر کے مارے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ جب رہایو اس آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، وہ اسے اگنور کرتی ہے اور اسی کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کمرے میں لائٹس آف ہوتی ہیں اور رہایو اپنے پیچھے کسی کو کھڑا محسوس کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ رہایو لائٹس آن کر کے جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ خیر، رہایو اپنا حجاب اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور سیم اسی آدمی کی طرح رہایو کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کافی سارے لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اور اسی ٹائم پہ لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ رہایو پھر بھی نماز کو کنٹینیو رکھتی ہے ڈر کے۔ رہایو اس پوائنٹ پہ ڈر تو جاتی ہے لیکن پھر بھی اپنی نماز کو کنٹینیو رکھتی ہے۔ جب رہایو اپنا پہلا سلام پھیرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کیسے اس کو کافی سارے شیطان اور جنات نے گھیر رکھا ہے۔ رہایو ڈر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں وہ اپنے ماضی میں چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اس کا باپ سمیدی ایک آدمی کو ٹھیک کر رہا ہے، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے سمیدی کے منہ سے ایک سانپ نکلتا ہے۔ وہ سانپ جب رہایو کے پاس جاتا ہے تو
तो समेदी उसे पकड़ लेता है और वो सांप एक छड़ी में बदल जाता है। वही छड़ी रहायु ने सुरवू के घर में देखी थी। जब रहायु होश में आती है वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन रहायु इस पॉइंट पे इतना डर चुकी थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहां से भाग जाती है। उससे अगले ही दिन रहायु सुबह अपनी दुकान पे जाती है और कुछ लोग रीरी की दुकान के बजाय रहायु की दुकान से कपड़े खरीदते हैं, जिसको देखकर रीरी को बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रहायु को बुरा भला कहती है और तंजिया अंदाज में रहायु को एक जादूगर की बेटी बताती है। और वो गाहक जब ये अल्फाज सुनते हैं तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रीरी रुकती नहीं। वो और ज्यादा बुरा भला बोलती है रहायु को और उसके बाप को, जिससे रहायु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रीरी पे हमला कर देती है। वहां के आसपास के लोग ये नोट करते हैं कि कैसे रहायु कुछ बदली बदली सी लग रही है और उसकी आंखें एकदम ठंडी सफेद हो चुकी हैं और उसमें अजीब ही लेवल की ताकत आ रखी है। इतने में वहां पे रतमान आ जाता है जो रहायु को पकड़ के उसके सर के ऊपर कोई दुआ दम दरूद करता है, जिससे रहायु ठीक हो जाती है फिलहाल के लिए। लेकिन इससे वहां के आसपास के लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि रहायु को किसी जिन ने अपने बस में कर रखा है और साथ ही साथ वो ये भी समझ जाते हैं कि जो लोग उस प्रेयर रूम, उस छोटी सी मस्जिद में जाते हैं, वो कैसे पोजेस्ड हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब शाम को रहायु अपने घर वापस जाती है तो उसकी सौतेली माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने पुराने घर में, जो कि अब एक प्रेयर रूम बन चुका है, वहां पर किसी को देखा और न जाने क्यों। रहायु इस बात से इनकार कर देती है कि मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा। खैर, रहायु की सौतेली माँ उसे बताती है कि अगर तुम वहां पर किसी को देखो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हम क्यों पढ़ते हैं और किसको भगाने के लिए पढ़ते हैं। खैर, अगले ही दिन रहायु वापस अपने पुराने घर में जाती है नमाज पढ़ने के लिए। तो वहां पर वो नोट करती है कि कैसे एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उस आदमी की कमर में दर्द होता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी नमाज को कंटिन्यू रखता है। रहायु देखती है कि कैसे उस आदमी की कमर पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का बच्चा लटका हुआ है। रहायु अपनी आंखों को साफ करके दोबारा देखती है, वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। रहायु वुजू करके पर्दा करके नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और फिर उसे वहां पर शैतान के पांव नजर आते हैं। रहायु वही करती है जो उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती है और अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो उसे शैतान का कटा हुआ सर नजर आता है। और रहायु साथ ही साथ ये भी देखती है कि कैसे वो बहुत सारे शैतानों के दरमियान लेटी हुई है। ये देखने के बाद रहायु बेहोश हो जाती है और कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है फिर से। इसके बाद रीरी की माँ काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर रहायु के घर पे पहुंच जाती है और बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है कि क्यों तुम्हारी बेटी रहायु ने मेरी बेटी के ऊपर हमला किया। रहायु उससे माफी मांगती है, लेकिन रीरी की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और रहायु को तरह तरह की बातें सुनाती है कि कैसे तुम्हारा बाप शैतान था और तुमने मेरी बेटी पर काला जादू किया है, अरे इसीलिए तो तुम्हारे बाप का गला काट दिया गया था। रहायु ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रीरी की माँ पर भी हमला कर देती है। रहायु की माँ कैसे भी करके इस झगड़े को रोकती है और वहां से जितने भी लोग होते हैं चले जाते हैं। रहायु की सौतेली माँ उसे बोलती है कि कैसे तुम्हें हर किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। रहायु की सौतेली माँ उसे बताती है कि कैसे इस घर को हमें बेच देना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। रहायु अपनी सौतेली माँ से कहती है तुम ये सब बातें संतोत की बातों में आकर कह रही हो। इसके बाद रहायु सो जाती है और वो ख्वाब में देखती है कि कैसे वो एक शैतान यानी जिन की गोद में लेटी हुई है और वो शैतान की दुनिया में घूम रही है। इसके बाद जब डर के मारे रहायु की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कैसे वो सुरवू के घर पे मौजूद है। वहाँ पे उसे रतमान लेकर आया था प्रेयर रूम से बचाकर, यानी कि ये सब उसके लिए एक ख्वाब था। सुरवू रहायु को बताता है कि कैसे तुम्हारे पास एक काबिलियत है, एक पावर है कि तुम जिन्नात को अपने पास बुला सकती हो, जिन्नात को काबू कर सकती हो, लेकिन उन्हें अपने से दूर यानी वापस नहीं भेज सकती। और बचपन में तुमने बहुत सारे जिन्नात को बुला लिया था और बचपन में तुम्हारे बहुत से जिन्नात दोस्त भी थे जिनके साथ तुम बातें किया करती थी, इसीलिए तुम्हारे दादा, तुम्हारे सौतेले दादा संतोत और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म किया था। ये एक किस्म का अमल होता है जो बहुत सारे रिलीजन्स में एग्जिस्ट करता है और ये तभी किया जाता है जब एक इंसान को कोई जिन्नात अपने बस में कर ले। और वही अमल रहायु पे भी उसका बाप और उसका सौतेला दादा परफॉर्म करता है। अगले ही दिन जब रहायु अपनी दुकान पे वापस जाती है तो उसे बहुत सारे जिन्नात नजर आते हैं। खैर, दूसरी तरफ रहायु की माँ से बहुत से लोग फूल खरीद रहे होते हैं, रीरी की माँ से कोई भी फूल नहीं खरीदता। ये देखकर रीरी की माँ को गुस्सा आता है और वही करती है जो उसकी बेटी ने पिछले ही दिन रहायु के साथ किया था। रीरी की माँ रहायु की सौतेली माँ के
के सारे फूल गिरा देती है और इतने में रहायु के अंदर से एक सांप निकलता है जो जाके रीरी की माँ को काट लेता है। सांप के काटने के बाद रीरी की माँ पर बहुत ही भयानक किस्म के छाले निकल आते हैं। वहाँ मोहल्ले के लोग शक करते हैं कि ये लोग सच में काला जादू कर सकते हैं। वो सब रहायु के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और एहतजाज करते हैं कि कैसे उन्हें इस मोहल्ले से निकल जाना चाहिए। इतने में वहाँ पर सुरभू आ जाता है जो वहाँ से लोगों को भगा देता है। वो जितने भी लोग रहायु के घर के बाहर खड़े होते हैं वो सुरभू से कहते हैं कि आज के बाद यहाँ पे जो भी खौफनाक हरकत होगी उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। वेल, इस मामले में सुरभू की किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है क्योंकि सेम उसी रात को रहायु बहुत ही गंदे वाला पोजेस्ड हो जाती है और उसी रात को वो रीरी की माँ का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है, वो भी उसका गला घोट कर। जब सुबह मोहल्ले वालों को ये बात पता चलती है तो वो सब रहायु के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और इंसाफ मांगते हैं कि कैसे रहायु की सौतेली माँ ने काला जादू किया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सुरभू वहीं पे मौजूद होता है और सबको यकीन दिलाने की कसम खाता है कि कैसे वो एक रिचुअल परफॉर्म करेगा जिसमें रहायु की माँ को कसम खानी होगी कि उसने कोई काला जादू नहीं किया। अगर तो वो कसम झूठी होगी तो रहायु की माँ मर जाएगी। वो रिचुअल परफॉर्म करता है और रहायु की माँ वहाँ से जिन्नात की दुनिया में चली जाती है और वो वहाँ पे देखती है कि कैसे उसकी बेटी रहायु को एक जिन्नात ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो डर के मारे उठ जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको यकीन हो जाता है कि रहायु की सौतेली माँ ने कोई काला जादू नहीं किया। खैर, संतोष सुरभू के साथ बैठता है और उसे बताता है कि कैसे उन्हें रहायु पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगी और कोई चारा नहीं है वरना इसको जिन्नात ने बड़ी बुरी तरह से अपने बस में कर लिया है। सुरभू संतोष से कहता है कि कैसे तुम ये सब जायदाद की लालच में कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है दोबारा एक्सोर्सिज्म करने पर रहायु की मौत भी हो सकती है। उसकी दूसरी तरफ रहायु की सौतेली माँ रहायु को अपने पास बिठाकर समझाती है कि कैसे उन्हें संतोष की बात मान लेनी चाहिए और इस घर को बेच देना चाहिए। रहायु फिर से गुस्से में आ जाती है और पोजेस्ड एक्ट करना शुरू कर देती है। कैसे संतोष एक बुरा इंसान है और जिस रात उसके बाप की मौत हुई थी उसने संतोष को एक आदमी से बात करते हुए देखा था, उस आदमी का कान कटा हुआ था। एंड गेस व्हाट, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टोरी के शुरू में बताया था कि रहायु अपने बाप को बचाने के चक्कर में एक आदमी का कान काट देती है। इससे अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे रहायु को काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद रहायु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रोना शुरू कर देती है। इतने में रहायु फिर से पोजेस्ड हो जाती है जिसके बाद उसके मुंह में से एक सांप निकलता है जो जाके उसकी बॉस को काट लेता है और उसकी बॉस भी मर जाती है। वापस उसके घर पे रहायु की माँ अपने पीछे एक सांप को खड़ा देखती है जिसको देख के डर जाती है और फिर उसे उठा के वो पटक पटक के मारना शुरू कर देती है। रहायु अपनी माँ को रोकती है लेकिन बहुत ही देर हो जाती है। रहायु की माँ नोट करती है कि कैसे उस जिन ने उसे सांप का रूप दिखाकर उसी से उसके बेटे का कत्ल करवा दिया है। इतने में रहायु की माँ को फिर से भरम होता है कि वो समेदी को देखती जिन्नात उसे अपने बस में करके उससे फांसी दिलवा देता है। इसके बाद रहायु को संतोष के घर में होश आता है और वो देखती है कि कैसे संतोष की बीवी उसके सामने बैठी हुई है। संतोष की बीवी रहायु को बताती है कि कैसे संतोष को उसकी बाप की जायदाद की कोई लालच नहीं है, वो ऑलरेडी एक अमीर इंसान है। वहीं पे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे संतोष की बीवी के पास भी सेम टू सेम वही पावर्स हैं जो रहायु के पास हैं। वो जिन को बुला तो लेती थी लेकिन उसे काबू नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी और संतोष ने ही उसे ठीक किया था। संतोष रहायु को भी ठीक कर सकता है लेकिन इस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए उसे रहायु की इजाजत की जरूरत है। रहायु इजाजत दे देती है और संतोष की बीवी संतोष से कहती है कि तुम इनके पुराने घर जाओ, जो कि अब एक मस्जिद बन चुकी है छोटी सी, उस चीज को ढूंढो जिस चीज के जरिए वो जिन वो शैतान रहायु के साथ जुड़ा हुआ है। संतोष वैसा ही करता है, उसे वो चीज मिल जाती है। अगले ही दिन रहायु पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। रहायु के सामने वही आदमी बैठा होता है जिसने उसके बाप का कत्ल किया होता है और रहायु को ये बात पता चल जाती है और वो बदले की आग से भड़क उठती है और अचानक जिन उसे फिर से पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो सब पे हमला करना शुरू कर देती है। इसी हमले के दौरान हमें ये हकीकत भी पता चल जाती है कि कैसे रहायु के बाप समेदी को संतोष ने नहीं बल्कि सुरभू ने मरवाया था संतोष के बेटे के जरिए, जो कि ऑल्सो एक जिन के काबू में था। वो जिन दोबारा संतोष के बेटे को
अपने काबू में ले लेता है और सब पे हमला करना शुरू कर देता है। और तो और अपने बाप संतोत को भी मार देता है। संतोत की बीवी अपने बेटे को होश में लाती है और जब संतोत का बेटा होश में आता है तो वो अपने गुनाह को रियलाइज करता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और वो अपनी ही जान ले लेता है। दूसरी तरफ संतोत की बीवी अपना होश संभालती है और रोहायू जो सबको जान से मार रही होती है उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर देती है, जिससे रोहायू के जिस्म में से वो खौफनाक शैतान, वो खौफनाक जिन निकल जाता है। इससे अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैसे संतोत की बीवी उस सांप की छड़ी को एक डब्बे में बंद करके दरिया में फेंक देती है और यहीं पे ये खौफनाक फिल्म खत्म हो जाती है। अब कहने को तो ये एक फिल्म है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये एक हकीकत के वाकये के ऊपर बनी है, जिसमें रोहायू नाम की एक लड़की को एक जिन जिसका नाम होता है खानजाब पोजेस कर लेता है। खैर उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे क्या तुम जिन पर यकीन रखते हो, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।